Good morning, students. It's lesson 7, Indigo. It is from Louis Fischer's A Life of Mahatma Gandhi. हम कल से पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में से लिया हुआ एक्सट्रैक्ट है ये। इंडिगो, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, इंडिगो नील को बोलते हैं। नील की खेती वाले किसानों की कहानी इसके अंदर है। उन लोगों को बटाईदार रखे हुए थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने। इस पर ये कहानी चल रही है। कल मैंने बताया था चंपारण आंदोलन से जुड़ा हुआ विषय है ये। चंपारण बिहार के अंदर नेपाल के पास में एक जिला है, वहां की ये घटना है। चंपारण से एक क्रांतिकारी व्यक्ति राजकुमार शुक्ला, he met Gandhiji and showed the problem in that area. Shukla brought Gandhiji to चंपारण। ये हम लोग कल पढ़े थे। अब चंपारण आने की जो कहानी है, ऑन द रूट टू चंपारण, अभी नहीं आए थे वो कलकत्ता मिले उससे, राजकुमार शुक्ला से। उसके बाद में वो लोग पटना गए राजेंद्र प्रसाद के घर पे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहां पर वो नहीं मिले, उनको वेट करना पड़ा। एंड द लास्ट लाइन वाज दैट बट गांधी वाज नॉट परमिटेड, दिस इज द लाइन, बट गांधी वाज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, लिस्ट some drops from his bucket pollute the entire source of water. What was that? Well, कुआं। How did they know? वो जो नौकर थे उनके राजेंद्र प्रसाद के, वो कैसे जानते that he was not an untouchable, कि वो एक अछूत व्यक्ति नहीं था गांधी। उन्होंने पानी नहीं भरने दिया कुएं में से उनको। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। उस जमाने में छुआछूत बहुत चरम पर था, जाति प्रथा बहुत चरम पर थी। छोटी जाति बड़ी जाति इस प्रकार का था। कोई लोगों को एक कुएं में से पानी भी नहीं भरने दिया जाता था। यहाँ की पोजीशन वही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी ब्राह्मण परिवार के होंगे या ऊंचे परिवार के होंगे, तथाकथित ऊंचे, इसलिए उनके नौकर उनके कुएं पर पानी नहीं भरने देते थे हर किसी को। यहाँ हमने छोड़ा। देन we continue to next paragraph. Gandhi decided to go first to Muzaffarpur from Calcutta, from Patna, which was on route to Champaran, to obtain more information, प्राप्त करना, more information about the conditions then शुक्ला was capable of imparting. शुक्ला इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, बट जितनी इंफॉर्मेशंस उसने दी, गांधी और अधिक इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना चाहते थे। कैपेबल नहीं था शुक्ला इतना देने में, जानकारी देने में। He accordingly sent a telegram, गांधी जी, he means गांधी जी, accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur for getting more and more information, because J.B. Kripalani was a professor in Arts College Muzaffarpur. So Gandhi wanted to meet him before going to Champaran. Alright, and Mr. J.B. Kripalani, Professor J.B. Kripalani was in the Arts College in Muzaffarpur. So he was a professor and he knew more about the situation in that area, in the Champaran district. Okay, so Gandhiji wanted to get more information from J.B. Kripalani. J.B. Kripalani was also made a minister in center after independence. Okay, we'll read about him when we get chance.
whom he had seen at Tagore Shantiniketan. Who was J.B. Kripalani? He was a known person, known to Gandhi. He once met him at Tagore Shantiniketan. Rabindranath Tagore Shantiniketan. It is in Calcutta. So Gandhi met him there, Kripalani. So he was known to him, and he had acquaintance with him. So he wanted to talk to J.B. Kripalani. He sent a telegram. The train arrived at midnight. Actually, they went to Muzaffarpur to meet J.B. Kripalani. रात को 12 बजे ट्रेन वहां पहुंची, मिडनाइट में पहुंची. 15 April 1917. Kripalani was waiting at the station because he had sent telegram to meet him. गांधी ने टेलीग्राम भेज दिया था, मैं वहां पहुंच रहा हूं. So Kripalani was waiting for him at the station with a large body of students. You know, he was a professor of arts. So many students followed him. Many students were there to receive Gandhi because Kripalani knew much more about Gandhi. So to welcome Gandhi, many students were also there on the station, at the railway station. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkani, a teacher in a government school. वहां नहीं ठहरे, वो कृपलानी के वहां नहीं ठहरे, बल्कि एक प्रोफेसर मालकानी को वहां ठहरे. It was for 2 days. It was an extraordinary thing in those days. A government school, government teacher, Mr. Professor Malkani, and he stopped Gandhiji in his house. So it was an extraordinary thing in those days. उस समय ये आसान चीज नहीं थी कि किसी क्रांतिकारी को कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपने घर में रख ले. गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिश लोगों की. क्रांतिकारी कौन थे? ब्रिटिश लोगों के खिलाफ थे. तो इस चीज को क्या माना जाता था? बगावत, विद्रोह माना जाता था, गद्दारी मानी जाती थी. तुम हमारे नौकर हो, ब्रिटिश के नौकर हो, और तुम ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जो एक्टिविस्ट है उनको अपने घर में ठहरा रहे हो. तो ये गुर्दे वाले लोग ही ठहरा सकते थे. कोई छोटा मोटा आदमी किसी क्रांतिकारी को अपने घर में ठहराने में डरता था, लेकिन ये प्रोफेसर मालकानी थे, उन्होंने गांधी को वहां ठहराया फॉर 2 days. गांधी ने लिखा इसके ऊपर, कमेंटेड, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, हार्बर मेक स्टे, ठहराना अपने घर, रोकना. मी इन स्मॉलर लोकेलिटीज, छोटे से गांव में. मुजफ्फरपुर वाज नॉट ए वेरी बिग प्लेस एट दैट टाइम. अब तो बहुत बड़ा शहर है. छोटी लोकेलिटी में गांधी आया है, किसी का ठहरा है, तो ये बात बड़ी आसानी से पूरे इलाके में मालूम पड़ जाती. और जब मालूम पड़ती तो गवर्नमेंट का नौकर होने के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी. लेकिन फिर भी मालकानी वाज ए ब्रेव पर्सन. द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल. और क्या मालूम है कमजोरी क्या थी? क्यों थे डरपोक लोग भारत के? अफ्रेड टू शो सिंपैथी, सहानुभूति भी नहीं बता सकते थे. किसके प्रति? फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल. होम रूल, ये हमारा संघर्ष था. स्वराज्य, होम रूल में हमारा राज्य, स्वराज्य के एडवोकेट्स, स्वराज्य के वकील, स्वराज्य की पैरवी करने वाले. एडवोकेट क्या होता है? पैरवी करता है. किसकी पैरवी करता है? किसी भी मामले के. क्या मामला था गांधी के पास? देश की आजादी. तो तुम स्वराज के लिए वकालत करने वाले लोगों को सिंपैथी दिखा रहे हो. ब्रिटिश लोग उनको बूंद देते, जेल में डाल देते, गोली मार देते. दिस वाज द पोजीशन. गांधी ने खुद ने लिखा, कमेंट किया, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट सीरियसली. काफी गंभीर विषय है, but you are students of class 12th and it is expected of you to understand the things in a sincere manner. Come to the next paragraph. The news of Gandhi's advent. मैंने कहा था गांधी के आने की बात पता लग जाएगी. मुजफ्फरपुर बहुत बड़ा शहर नहीं था. The news of Gandhi's advent and the nature of his mission. Why was he there? Why did he visit that place? Regarding Champaran.
रिगार्डिंग द इंडिगो फार्मर्स, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, वहां आया था वो। ये मालूम पड़ गया लोगों को, स्प्रेड, न्यूज स्प्रेड हो गई, फैल गई क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर कि गांधी वहां आया हुआ और गांधी वहां ठहरा हुआ है। गांधी वॉज ए बिग पर्सनालिटी, वॉज ए बिग गन, आखिर हमारे राष्ट्रपिता हैं। तो गांधी का पहुंचना कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी किसी जगह, पूरे चंपारण मुजफ्फरपुर मालूम पड़ गया, एंड टू चंपारण आल्सो। ओके, और जो मालूम पड़ा गांधी वहां है, तो क्या हुआ, शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, मुजफ्फरपुर के पास ही था वो, began arriving on foot by conveyance to see their champion, कि हमें बचाने वाला, हमारी रक्षा करने वाला गांधी यहाँ आ गया है। तो सैकड़ों की संख्या में लोग वहां आना शुरू कर दिए, अराइविंग होना शुरू हो गया। मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के वकील भी गांधी से मिलने आए, कॉल्ड ऑन टू ब्रीफ हिम, उनसे जानकारी लेने के लिए। संक्षेप में अपने मामले से सारांश में अवगत कराया उन्होंने, ब्रीफ, शॉर्टकट, संक्षिप्त में। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। वो जो वकील थे ना वहां के, वो पीजेंट ग्रुप्स की पैरवी करते थे, रिप्रेजेंट करते थे वहां पर, मतलब वहां के वकील थे ना, उन लोगों के केस लड़ते थे। लेकिन वहां भी एक समस्या थी। व्हाट वाज देयर, दे एडवोकेट्स, है ना, या लायर्स, frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases. उन वकीलों ने बताया कि इस तरह हम केस लड़ रहे हैं कई लोगों के, बटेदारों के, जिनको ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स चीट करते हैं। और उन्होंने बताया, रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा हम फीस लेते हैं इनसे, साइज ऑफ देयर फी, वकीलों की फीस बहुत ज़्यादा होती थी। तो इस पर भी गांधी थोड़े नाराज हो गए, बोल तुम इन गरीबों से इतनी बड़ी फीस क्यों ले रहे हो, इनसे तुम इनका केस लड़ो, निःशुल्क लड़ो, कम फीस में लड़ो, बिकॉज दे आर ऑलरेडी टॉर्चर्ड एंड पुअर पीपल। गांधी जी चाइडेड द लायर्स, चाइडेड, गांधी ने डांटा उनको, फटकारा वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग बिग फी। मैंने बताया ना कि वो वहां भी प्रॉब्लम थी। ओके, वो लड़ते तो थे केस, बट दे कलेक्टेड ए बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन गरीबों से। ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। गांधी जी ने कहा कि हमें कोर्ट वोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, स्टॉप इट। मैं कंक्लूजन में पहुंचा हूं, कोई जरूरत नहीं केस लड़ने की, ये हमारा हक है, हमारी खेती है, हमें केस वेस नहीं लड़ना है, बल्कि कोई और तरीका अपनाना है, हमें अहिंसक आंदोलन करना है। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। ऐसे केसेस को कोर्ट ले जाने में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, बहुत ज्यादा भला नहीं होता। क्या कारण है, कोर्ट्स किसकी हैं, ब्रिटिश लोगों की है, जजेस कौन है, ब्रिटिश है, किसके पक्ष में फैसला कराएंगे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के पक्ष में, इसलिए वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, गांधी ने सजेस्ट किया। Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. भय से मुक्त करो उनको, डर से मुक्त करो लैंडलॉर्ड्स के, मैन रिलीफ वहां मिलेगी। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates. वहां की जो अच्छी उपजाऊ भूमि थी, एरेबल, जोतने जाने जैसी जो मूल्यवान भूमि थी, वो किसके में डिवाइड कर रखी थी, डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। उन्होंने कब्जा कर लिया था। अपने पड़ोस में भी एक शहर है नीमच, नीमच में भी काफी बड़े बड़े बेंगलोज अंग्रेज लोगों ने कब्जे कर लिए थे। बंगला नंबर 1, बंगला नंबर 2, जमीन भारत की, मजदूर भारत के, पैसा हमारा, मजदूरी हमसे करवाई,
बड़े बड़े बंगले बना लिए और बोले हमारा है बंगला, तो ये बंगले बना दिए बड़े बड़े, 2-2 4-4 बीघा के बंगले उन अंग्रेज लोगों ने, और वो बेच गए जैसे उनके बाप की जमीन हो भारत में। मूर्ख लोगों ने ले भी ली, पैसे में ले ली उस जमीन को, अंग्रेजों द्वारा बिकी हुई। इस प्रकार की दादागिरी थी अंग्रेज लोगों की। तो बोले लार्ज स्टेट्स, बड़ी बड़ी जागीरें, बड़ी बड़ी खेती अंग्रेज इंग्लिश लोगों ने कब्जा कर लिया। वर्क बाय इंडियन पीजेंट्स, टेनेंट्स, काम कौन करते बेचारे? इंडियन टेनेंट्स, इंडियन टेनेंट्स काम करते, इंडियन टेनेंट्स, भारतीय किराएदार, टेनेंट्स हो गए वो। और मालिक कौन हो गए? अंग्रेज लोग हो गए। ओके, काश्तकार पे खेती करते थे, स्वामी वो बन गए। और उसकी व्यापारिक फसल क्या थी वहां की? द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप, व्यापारिक फसल कहलाती है। सीधी बेच दो पैसे आ जाएंगे, खाने की नहीं होती वो, उसको बोलते हैं व्यापारिक फसल। जैसे सोयाबीन है, व्यापारिक फसल है, उसको अपन खा नहीं सकते। गेहूं व्यापारिक फसल नहीं कहलाएगी, गेहूं हमारा खाद्य पदार्थ है, चना गेहूं ये खाद्य है। लेकिन जो व्यापारिक फसलें होती सीधी बाहर जाने वाली, वहां ये चीफ व्यापारिक फसल क्या होगा रखी थी? वाज इंडिगो, नील पैदा करते, बाहर जाती, बिकती, और वो उसको ब्लैक में बेचते, वो लोग अंग्रेज लोग कब्जा कर लेते। और वहां क्या दिक्कत थी? द लैंडलॉर्ड्स कंपेयर्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो। वो उनको फोर्स करते कि तुम 3/20 15% भाग में क्या बोओगे? इंडिगो बोओगे हमारे लिए। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, पूरी जितनी भी इंडिगो पैदा होती है वो सब तुम हमें किराए के रूप में दोगे। खेती तुम करोगे, मेहनत तुम करोगे, पूरी पूरी इंडिगो पैदा करके हमको दोगे। दिस वॉज डन बाई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत पहले से उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था, समझौता था उन लोगों के किसानों के साथ। तो वो चला ही जा रहे थे उस समझौते को, किसान उसको फॉलो करे जा रहे थे। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड, इन दिनों में लैंडलॉर्ड्स को मालूम पड़ा दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। ये क्वेश्चन आएगा, क्यों परिवर्तन आया सारे सिनेरियो में? जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, ये जो इंडिगो थी ये नेचुरल थी, इट वाज ए हार्वेस्ट, इट वाज ग्रोन इन फार्म्स, फील्ड्स, एग्रीकल्चर किया जाता था उसका। लेकिन जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ इस बीच? दे thereupon obtained agreements from the sharecroppers, obtained, got, received। इसके बाद में ये घटना सुनी उन्होंने कि जर्मनी में आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंडिगो बनना शुरू हो गई। तो अब जो नेचुरल इंडिगो है ये, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आर्टिफिशियल सिंथेटिक बनना शुरू हो जाएगी केमिकल्स के द्वारा, रासायनिक। जर्मनी ने डेवलप कर लिया था तरीका। Thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। अब उन्होंने सोचा कि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी बाहर, तो उन्होंने थोड़ा उसमें छूट देना शुरू की कि हम 15% से तुम्हें थोड़ा रिलीज करते हैं, अब तुम कम देना, हमको चाहे तो 10% दे देना, 10% देना, ऐसे कंपेंसेशन छूट देने का उन्होंने सोचा। यहाँ क्वेश्चन चेंज होता है, क्या क्या परिवर्तन आया? जर्मनी का सिंथेटिक इंडिगो आने के बाद में दे चेंज द एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयरहोल्डर्स टू पे देम कंपेंसेशन, कि हम तुमको थोड़ा मुक्त कर देंगे, 15% की व्यवस्था से मुक्त कर देंगे और उसके बदले क्षतिपूर्ति देंगे। जो 50% व्यवस्था दे रखी थी वो छूट कर देंगे, इसके अंदर जो बंधन है वो, तो और तुम लोग साइन कर दो कागजों पर, ठीक है। वापस से उन्होंने एग्रीमेंट साइन करा लिए कि चलो हम तुम्हें छूट दे देंगे, लेकिन तुम हमारे काम करते रहोगे बराबर। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज irksome टू द पीजेंट्स,
जो शेयर क्रॉपिंग का काम था उनके लिए बड़ा कष्टदायक था। बटेदारी का काम, बटेदारी का मतलब जमीन अंग्रेजों की, मेहनत हम करें चाहे जितना वो लोग हमें दें, बाकी सारा वो छीन लेते हैं, पैदाइश जितनी भी पैदावार होती है वो। तो उन्होंने साइन कर दिए, किसानों ने एग्रीमेंट कर दिया, ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स ब्रिटिश लोगों ने प्राप्त कर लिया। एंड मैनी साइंड विलिंगली, उनका चलो ठीक है अब नील का लफड़ा खत्म हो गया, 15% नील हमें नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन हम बटेदार रहेंगे। दोज हु रेजिस्टेड, कुछ लोगों ने विरोध किया। एंगेज लॉयर्स, वकील किए कि नहीं हमें ये मंजूर नहीं, हम तो बटेदारी का काम छोड़ेंगे। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, तो फिर लैंडलॉर्ड ने क्या किया, ठग्स लाए, बदमाश लोगों को लाए उनको मारने के लिए, उनको डराने के लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स, धीरे धीरे करके बात पहुंच गई अशिक्षित किसानों तक भी। हु हैड साइंड, जिन्होंने साइन कर दिए थे बटेदारी पर। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, उन्होंने उनका पैसा वापस मांगा कि नहीं हमको वापस पैसा दो, हमारा विरोध किया कि हमें अपना पैसा वापस दिया जाए, जो इस शर्त के लिए हस्ताक्षर किए थे जिन्होंने कि बटेदारी रहेगी और बटेदारी का पैसा तुम हमें दोगे। तो इलिटरेट पीपल जो थे वो भी धीरे धीरे विरोधी हो गए, उन्होंने अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया। इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, यहाँ इस समय जब गांधी का आगमन हुआ, ये पोजीशन चल रही थी। वो जो किसान थे वो अपने पैसे वापस मांग रहे थे और बटेदारी की प्रथा से वो बाहर निकलना चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। He began by trying to get the facts. He began by trying to get the facts. सारे तथ्य इकट्ठे किए उन्होंने। First he visited the secretary of the British Landlords Association. लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले, जो अंग्रेज जागीरदारों का संगठन था, उनके सचिव से मिले। वो अंग्रेज था, ब्रिटिश था। उसने बोला, द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, उससे मिले कि क्या व्यवस्था है, क्या दिक्कत है, आप क्यों इस प्रकार चीट कर रहे हो। तो सेक्रेटरी ने बोला दैट दे कुड गिव नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि हम किसी बाहरी व्यक्ति को जानकारी नहीं दे सकते। आप कौन हो, बाहरी व्यक्ति हो, हम केवल किसानों को जानकारी देते हैं जो हमारे शेयर क्रॉपर्स हैं, बटेदार है हमारे। हु आर यू टू आस्क, गांधी को कहा, गांधी को बाहरी आदमी माना उन्होंने। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी ने कहा कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं इसी देश का निवासी हूँ, ये मेरे भाई हैं। लेकिन वो तो ब्रिटिश लोग तो फूट डालो राज करो वाली नीति वाले थे, वो सोचते कि ये बाहर का आदमी आके यहाँ पे क्यों फंसा। तो उन्होंने पहले टालना चाहा उसको कि तू बाहर का, तुझे हम जानकारी नहीं देंगे। लेकिन गांधी ने कहा कि नो, मैं बाहर का नहीं हूँ, लेकिन उसको जानकारी नहीं दी गांधी जी को। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन, मिलने गए द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब वो डिवीजन लेवल के कमिश्नर से मिलने गए। चंपारण जिला था, तिरहुत डिवीजन था, तिरहुत डिवीजन था विभाग, जिसे अपना उदयपुर है। तो डिवीजन लेवल के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिले, वहां गए। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, गांधी हमें बता रहे हैं कमिश्नर ने क्या किया। प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत। जब मिलने गए ना कमिश्नर के पास, तो कमिश्नर ने उनको धमकाया कि हु आर यू मिस्टर, व्हाई हैव यू कम हियर, बुली, थ्रेट करना, धमकाना। एंड ही एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, और इसके साथ ही कहा कि आप तिरहुत छोड़ के रवाना हो जाओ। परामर्श दिया उसने, एडवाइस किया, एडवाइस, व्हाई आर यू हियर, यू शुड नॉट स्टे हियर, गो लीव तिरहुत, लीव तिरहुत डिवीजन। हु टोल्ड, द कमिश्नर।
गांधी डिड नॉट लिव, गांधी ने उसको फॉलो नहीं किया, आज्ञा नहीं मानी। अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन ही था, वही था कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे, वी वोंट ओबे देम। तो डिसओबे करना उनका मेन टारगेट था। गांधी डिड नॉट लिव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, और आगे बढ़ गए। कहां पर? द कैपिटल ऑफ चंपारण। अब वो केंद्रीय स्थल पर पहुंच गए, जहां सारे मुख्य केंद्र था उसका मोतिहारी, वहां पहुंच गए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की राजधानी थी वो। उस समय चंपारण राज्य के रूप में था, एक स्टेट होगी इस तरह से। तो वहां पहुंच गए। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत सारे एडवोकेट्स इकट्ठे हो गए, वकील। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, बहुत बड़ी संख्या ने गांधी को अभिनंदन किया, सम्मान किया। ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज ए हेडक्वार्टर्स, उसने एक मकान देखा वहां पर और अपना मुख्यालय बना लिया, वहां हेडक्वार्टर्स बना लिया। वहीं से अपना संगठन का कार्य शुरू किया, उन्होंने संचालन शुरू किया अपना क्रांति का। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, इंफॉर्मेशंस, सारी जानकारियां। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन maltreated in a nearby village, घटना पता लगी उनको कि एक किसान के साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया गया है, मैलट्रीट, दुर्व्यवहार किया जाए, पीटा गया उसको या बुरा बर्ताव किया गया। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी वेंट देयर। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, हाथी पर बैठकर रवाना हो गए गांधी। He had not proceeded far, बहुत दूर नहीं निकले होंगे, वो इलाका काफी जंगली इलाका है, बिहार का, नेपाल की तलहटी का इलाका है, जंगल है, हाथी पर बैठकर जाना पड़ता है, जंगल इलाका आ गया। तो जो कुछ आगे बढ़े, when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage, वो अपनी गाड़ी लेकर के ओवरटेक किया, हाथी से आगे आके खड़ा हो गया और कहा कि आप रिटर्न हो जाइए, ऑर्डर दिया। गांधी कंप्लाइड, गांधी ने उसके आदेश का पालन किया, क्योंकि वो पुलिस सुपरिंटेंडेंट का आदेश था। कंप्लाइड किया, ओबेड द ऑर्डर। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, मैसेंजर अपनी गाड़ी में उसको बैठा कर ले आया। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस, वहां आकर के एक नोटिस पकड़ाया उनको। नोटिस एक आदेश होता है, सूचना होती है कि आपको ये कहा जाता है, इसको मान लो, अगर नहीं माना तो आगे कार्रवाई होगी, इसको नोटिस कहते हैं। तो गांधी को वहां लेके आ गए वापस वो मोतिहारी, और उसको एक नोटिस दे दिया पुलिस की तरफ से, टू क्विट चंपारण, क्विट त्यागना, छोड़ना, इमीडिएटली। गांधी साइंड ए रिसीट, गांधी ने रिसीट पर साइन किया, जो नोटिस सर्व किया उसका, रिसीट for the notice, and wrote on it that he would disobey the order. इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी signed a receipt, साइन तो कर दिया, for the notice, प्राप्त किया उसको, and wrote on it that he would disobey the order. I received this order, but I won't obey it. Signed and wrote like this. In consequence, Gandhi received summon. इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? गांधी रिसीव्ड समन टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। सुपरिंटेंडेंट ने आगे बढ़ा दिया उस मामले को, और गांधी को फिर एक समन आया, बुलावा आया, आदेश आया, अब कोर्ट में प्रेजेंट हुई है, कोर्ट द नेक्स्ट डे। रिसीव्ड समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, पूरी रात गांधी जगते रहे, सोचते रहे कि क्या करना पड़ेगा, क्या कार्रवाई करनी पड़ेगी। और रात को ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उन्होंने वहां बुलाया अपने प्रभावशाली मित्रों को लेकर, यहाँ पे आओ, तब जाकर हम लोग इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, अपने आश्रम पर भी इंस्ट्रक्शन भेज दिए। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, और पूरी रिपोर्ट जो भी थी वहां की दादागिरी की, अंग्रेजों की, वो रिपोर्ट
पूरे लिख करके और वायर कर दिया, टेलीग्राम कर दिया। वायर में तार करना, तार कर दिया किसको? द वायसराय। वायसराय ब्रिटिश अधिकारी होता था केंद्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर, दिल्ली में बैठते थे, वहां उनको वायर कर दिया, तार कर दिया, उनको सारी जानकारी उनको दे दी। ओके, तुम लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा डिफिकल्ट तरह की लैंग्वेज है, लेकिन वी हैव टू रीड, क्योंकि गांधी है, ठीक है। गांधी कोई सामान्य चीज नहीं है, और भारत की आजादी की क्रांति कोई सामान्य चीज नहीं है, आंदोलन सामान्य चीज नहीं है, इसलिए हमें इसको गंभीरता से समझना है। सारी वोकैबुलरी ध्यान रख के समझेंगे इसको और नोट करेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक।